جی شمس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے. بے شک. تو آج اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ہیں، لیکن ہماری پہچان اور ہماری ماں، ایک وہ ماں کی جس نے ہمیں پیدا کیا، دوسرا وہ ماں جس نے ہمیں شناخت دی ہے، اور وہ سب پاسپورٹ کی جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ میں آئی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. پہلے میں پاکستانی ہوں، بعد میں امریکی ہوں. تھا ٹھاکر صاحب آئے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، بڑی نوبل کاز کے لیے آئے ہوئے. اور مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ کوئی اندر وہ جو چیز تھی جو لوگوں کو یہ کھینچتے اپنی طرف، کہ ان کے سینے میں اللہ کی وہ خطاب موجود ہے. میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ انہیں حافظ قرآن کے علاوہ حامل قرآن بھی بنائے. اور عملی طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈالروں کو ٹھوکر مار کر انڈیا میں جو انڈیا کے لوگوں نے پاکستان کے عوام پر، پاکستان کی پاک افواج پر جو وہ بھونکے ہیں، اس کا اگر جواب دیا ہے تو ٹھاکر صاحب نے حقیقت ہے پورا حق ادا کر دیا. پورے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. $1 کا نقصان ہو تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. کروڑوں روپیہ، غالباً 27 کروڑ روپیہ کے کانٹریکٹ موجود ہے. ٹھوکر ماری ہے کہ اگر کوئی میری ماں کی بات کرے گا تو میرے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہم اس پر پاک امریکن سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر اور اپنی ٹیم کی طرف سے میں آپ کو اس کا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی اس کی ہمت اور استقامت دے. آج یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان بٹ صاحب کے گھر کھانے کا آپ نے اہتمام کیا بٹ صاحب نے. تو یہاں پر 2 اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. پاک امریکن سوسائٹی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے الحمدللہ آرگنائز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. ویسے تو 2010 سے ہم رجسٹرڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس کے ساتھ، لیکن اب مزید ہم مختلف اپنے شعبہ جات بنا رہے ہیں. میڈیا کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں. اس میں میرے بھائی شہزاد انور جو ہے نا ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں. چودھری اشرف صاحب سیکرٹری جنرل، پروفیسر سلیمان ملک صاحب. تو ہمارے یہ ایسے یہ لوگ ہیں، یہ ٹیم ہے کہ جنہوں نے شروع دن سے بڑی کوشش کی ہے، اور آگے انشاءاللہ ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے. اور جگی بھائی جیسے لوگ اگر آگے، پھر سلیمان بٹ صاحب آگے، تو ان کو تسنیم شہزاد صاحب آئے. تسنیم بھائی کے ساتھ وہ بڑا پرانا تعلق ہے. تو سلیمان بٹ صاحب کو میں نے جب سنا اور ان کے ساتھ ملا، میں نے گریجویشن سائیکالوجی میں، اسلامک اسٹڈی میں کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بندے کی شناسائی اور اس کو کرنا، دوسرے لفظ میں اسکین کرنا، اللہ نے وہ دیا ہوا سلسلہ. تو کہتے ہیں نا دیکھ دا ایک چاول ہی چاک لو تو پتہ چل جاتا ہے. صحیح بات. تو بٹ صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا. گفتگو جب کر رہے تھے تو میں نے پورا توجہ کے ساتھ انہیں سنا اور یہ بات دل سے کر رہے تھے. تو دوستوں کے مشورے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقدار ہیں کہ میں ان کو اپنے ٹیم کے مشورے سے پاک امریکن سوسائٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہوں. یہ بس آپ ذرا مبارک ہو. ملک صاحب جو ساتھ ہے، چلیے صاحب تسنیم بھائی آپ کے ساتھ، شہزاد بھائی ساتھ ہیں. آج اپنا جگی بھائی اوکے. بہت بہت مبارک ہو جی. بہت بہت بٹ صاحب، یو ویل ڈیزرو دس پوزیشن and you are really deserve this. That's why we decided and you are on it. Thank you so much. You are vice president, senior vice president of Pak American Society, whole USA. Yes. Inshallah. And the second one I would like to ask, میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی دوست، میرے محلے دار، young man, very dynamic importer exporter, محمد سلیم صاحب، جن کا آنا جانا میرے ساتھ بڑا رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جو پبلک اسکول ہیں اپنا، اس میں سے یہ اپنا سٹی میں یہ وہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں اس میں بورڈ میں. تو آج ہم انہیں ڈائریکٹر پبلک اسکول افیئر پورے نیو یارک سٹی کے جتنے بھی پبلک اسکولس کے، ہائی اسکول کے ہمارے بچے اور بچیوں کے ایشوز ہیں، کوئی بھی جو پیرنٹس کے اندر ایک لزان کا کردار ہے، اس میں ہم انہیں اوور آل ہم اپنا ان کو ڈائریکٹر بنا رہے ہیں. پاک امریکن سوسائٹی USA کا بنا رہے ہیں. سو
डायरेक्टर पब्लिक अफेयर स्कूल। Congratulations. Thank you so much. माशाल्लाह। आप कुछ थोड़ा सा बता दें अपने। हाँ जी, आप जी, जरा मेरा बताएं। नाम मोहम्मद सलीम है जी। मैं रिसेंटली इलेक्ट हुआ हूँ न्यूयॉर्क काउंसिल ऑफ हाई स्कूल का मेंबर। इसका हमारा रोल ये है कि हम लोगों को जो न्यूयॉर्क के स्कूल में बच्चे हैं उनके बिहाफ पे हम काम करेंगे। हम न्यूयॉर्क के स्कूल के प्रिंसिपल्स को मिलेंगे, PTA मीटिंग्स अटेंड करेंगे, मेयर ऑफिस को अटेंड करेंगे, और जो भी जिस किसी का भी कोई हाई स्कूल का इशू है उसको हम लुक आफ्टर करेंगे। मेरा इनिशिएटिव ये है कि न्यूयॉर्क के स्कूलों में हर स्कूल में हलाल मीट नहीं मिलता, तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम न्यूयॉर्क के हर हाई स्कूल में हलाल मीट प्रोवाइड करवाएं। और सेकंड इशू ये है कि हमें ईद उल फितर की छुट्टी होती है, ईद उल अजहा की कहीं होती है कहीं नहीं होती, वो भी हम न्यूयॉर्क मेयर से उसको अप्रूव करवाएं। बट साहब आप इस तरफ आगे थोड़ा सा, मैं आपको कहने लगा कि बट साहब जरा नई पोजीशन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा, क्योंकि वीडियो चल रही है। मैं कहता हूँ एक मुझे कहने देना फिर, हाँ ताकि वो मैं फिर कट कर दूँगा वहाँ से। जी भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाक अमेरिकन सोसाइटी द होल USA हैं, तो ज़रा कुछ कह दें अपने पास में। थैंक यू सो मच राज भाई। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इधर तशरीफ़ लेके आए, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इफ्तिखार ठाकुर साहब का। ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे छोटा भाई अपना हमेशा समझा, पहले दिन से ही जो मेरी इनके साथ मोहब्बत है ठीक लग गई। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये भी इस जगह पे मौजूद हैं, और माशाल्लाह जैसे कि ये काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये फलाह के काम कर रहे हैं। अभी ये फ़ंड रेजिंग के लिए वुमेन नेसेसिटी जो जनेह जमशेद साहब की है उसके सिलसिले में अमेरिका आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अदारा जो हमारा पाक अमेरिकन सोसाइटी है, इंशाल्लाह ये भी उनके नक्शे कदम पर चले, जैसे जनेह जमशेद और जितने भी हमारे पाकिस्तान में सितारे रहे हैं, ईदी साहब रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम किया। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि जो ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, अल्लाह ताला मुझे इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हर अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने चाहने वालों में, अपने लोगों में हमारा शुमार करे, और हम सीधे रास्ते पे चलने वाले लोगों के साथ मिल जाए। और मैं इंशाल्लाह ये अहद करता हूँ कि मेरा ये जो मैं इस अमेरिकन पाक अमेरिकन सोसाइटी के अंदर हमारे जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो ओवरसीज़ हैं, इसके अंदर जितना मुझसे हो सका, जितना हम कर सकते हैं, अगर हमें किसी जगह के आगे जाके हमें फैसिलिटेशन करना पड़ता है लोगों को, तो हम आगे बढ़ के चढ़ के लोगों को इसके अंदर लेके आएंगे। और हमारी कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपने वतन अजीज़ के लिए काम करते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक शुक्रिया ज़रा जो साहब शमस साहब इनका भी नाम ले अच्छा कट करके करते हैं। चलें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमस समान साहब का, चौधरी साहब का, क्योंकि शमस समान साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने मुझे बड़ी ऑनर दी है, मेरे ऊपर एक ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान का सबसे बड़ा, जो किसी के इंसान के साथ इंसान का चलने का साथ देने का मुआहदा होता है, उसके अंदर सिर्फ ट्रस्ट जो होता है ना, वो बिल्ड इन होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं शमस भाई की जो इनकी जो तवक्कात हैं मेरे ऊपर, मैं उनको पूरा करूँ। और चौधरी साहब का, और जिन्होंने मेरे ऊपर एक ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह मिल के एक बाहमी मशवरे के साथ इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू, गुड। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने चले जाना है ओवरऑल पाक अमेरिकन सोसाइटी के हवाले से ज़रा। ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि ये सोसाइटी यहाँ पे अमेरिका नहीं, ये नहीं, ये खुद कहेंगे। अब ये आपको जो इन्हें तो न सिखाए ना, इन्हें तो न सिखाए। और नाम भट्ट साहब का, शमस साहब का, चौधरी अचल साहब का, ये सारा ज़रा उन्हें पता क्या करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ दिनों से यहाँ USA में हूँ, और अभी जो पिछला एक इलेक्शन गुजरा है हमदानी साहब का, मैंने वो देखा, लोगों का उनके बारे में जो ख्याल था वो सुना। तो इलेक्शन से पहले मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, ताकि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करते रहें। शमस साहब, चौधरी साहब और भट्ट साहब और मेरे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये काफ़ी दिनों से इस तवज्जो में लगे हुए हैं। ये मामूली काम नहीं है। देखो, अमेरिका और पाकिस्तान को ताल्लुकात के अंदर एक दूसरे के करीब करना,
इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। और ये बड़ी बात होती है कि ओवरसीज़ में रहकर एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर ये अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। इससे पाकिस्तानी भी महफूज होंगे और पाकिस्तान भी महफूज होंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त ऑडियो इन फ्रेम कर दो और बने भी कुछ समझ नहीं आई क्योंकि बनाना तो अल्लाह ने विच बंदे होंगे। लास्ट साडा स्टेशन बनया सर कंगनपुर का MP आया सी साडे प्रोग्राम ते हाँ जी उन्होंने मैंने कहा सर क्या मेरा दोस्त हैगा ये दुबई होंदा ये ना 2 दिन वास्ते आया सी ये ना जी सिर्फ तुहानू मिलण आया। उन्होंने मैं पूछा मैं उन्हें कहा सर मेरे ना वालद साहब सन तुहाडे नाल हाल ते मिना दे विचों तुसीं उन्हां नूं लै के गए हो अरफात तो मुज़लफा तो तुसीं उन्हां को डंडा सोटा शैताना नाल करवा के ते तुसीं उन्हां दी कुर्बानी भी कराई सी ते वो हलक भी कराया सी। वो वालद साहब मैनूं हमेशा ही कहते सन कि यार किधरे मिल जाए ना तो मेरा सलाम तो इसलिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। नाल उन्होंने मैंने कहा कि मेरे लिए कोई खिदमत ऐसी दसो जी मैं दस्या मैं कि यार मिंचनाबाद जो एरिया ना उधर ना जी साढ़े 18 बच्चे ने जे तो कसूर वालों आइए तो भी 3-3.5 घंटे लगते हैं जे असी जंगल वाले पासों आइए तो भी 3.5-3.5 घंटे लगते। अक्सर सड़क टुटियां भजियां बाप नहीं आते बच्चे के नाल बाप तो काम ते गया माँ आती है सर बच्चे नूं लै वो उस बच्चे की माँ तो है ही है साड़ी भी तो माँ ਉਹਦਾ सफ़र किस तरह खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मिंचनाबाद अगर तुसी उत्ते कंगनपुर में सानू 3 मरले जगह लै दिओ ना असी उत्ते सेंटर बना दिए तो वो 18 मावां का सफ़र खत्म हो सकता। उस बंदे ने मेरे प्रॉमिस किया सर चला गया मेरे गाहे बगाहे WhatsApp के उत्ते रहा लेकिन वो ना उसकी कोई गल नहीं सी करता वो किधर भी उन्हें उस गल नहीं की 3 मरले हो गई जगह या मैं कोशिश कर रहा बस वो कोई मैसेज भेजता सी मैंने उसका रिप्लाई कर 4 महीने तो बाद उसकी मैंने कॉल आई है उस दिन वैनसडे से उन्हें मैंने कहा सर अज बुध है कि कल जुमेरात है तो परसों जुम्मा अगर तुम साढ़े नाल पढ़ो ना इतने कंगनपुर तो असी कंगनपुर के लोग थोड़े बड़े मशहूर हो गए। मेरे जहन च ख्याल पैदा हो गया कि भी वो 3 मरले जगह हो गई है तो तां ही कह रहे मैं सर उत्ते पहुंची 12:30 बजे वो रोड तो कोई 3 फरलांग उन्होंने पिंड है उन्होंने मैंने रोड ते ही ला लिया अगे मैं देखा सर कि 150-200 के करीब बंदे ने सड़क के दोनों पासे खलोते उन्होंने विचों जो मैं गुजर के गया ना जी तो एक कनाल का सेंटर बिल्कुल तैयार सर यानी कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग तैयार। उन्होंने कहा सर हर चीज़ सिर्फ ब्लड बैंक बाकी हर चीज़ डिस्पेंसरी भी रेडी है बेड भी रेडी ने हर चीज़ रेडी इवन उन्होंने छोटा जहा मेडिकल स्टोर भी बनाया सिर्फ उन्होंने कहा सर ब्लड बैंक लगाया। वो मुस्लिम चैरिटी जी UK वाली है ना सर वो साढ़े नाल एफिलिएट है उन्होंने रिक्वेस्ट करके 16 दिन उन्होंने लाया सर ब्लड बैंक जो ने जी ये सब तो मुश्किल एरिया होंगे साढ़े उस सेंटर का ब्लड बैंक जो सर वो वास्ते बिजली भी चाहिए है UPS भी चाहिए है जनरेटर भी चाहिए और आसमानी बिजली भी चाहिए क्योंकि -18 के उत्ते वो ब्लड सर फ्रीज होना है वो अगर 1 सेकंड वास्ते भी बंद हो जाए ना सर तो वो टोटल लॉस हो जाता वो ला के नाल साडा वो आखिरी 27वां सेंटर है सर वो 18 बच्चे मेरी माँ का सफर खत्म है करदा अल्लाह है जी हाँ जी लेकिन वसीला किसी यस वो जो है ना जी ज़ालिकल किताब ला रहे बकरी तो दल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यानी हिदायत के लिए वो मुत्तकीन लोगों के लिए हिदायत है तो हिदायत उतरती है वो किसी पे भी अल्लाह किसी के भी जिम्मे लगा सकता है वरना उस बंदे का इस बात से कतई कोई ताल्लुक नहीं है
ना उसको ये भी नहीं पता था कि थैलीसीमिया होता क्या है, ठीक है, अल्लाह ने तो करा रखा। ASF ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਓਏ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 26ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਦਿਨ ਅਬ ਇਨਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੋਦੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਜ਼ੀਦੀਅਤ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। अब देख लो सारा कुछ उल्टा हो गया, यानी वो सानू दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਸਰਬੇਜ਼। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿव ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। अब एक तस्वीर बनाओ ऐसी तरह पूरी ना अच्छी सी, एक तस्वीर